ਹੈਲੋ एवरीवन। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿੰਦੂ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਰਿਟਸ ਐਂਡ ਡੀਮੈਰਿਟਸ। ਮੈਰਿਟਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ। ਜਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਹੈੱਡ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਡੈਸਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਤਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਏਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਅਦਰ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਵੀ। he may be managing rightly or wrongly, no other member interferes in his management। ਅਗਰ ਉਹ wrongly ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਉਸਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਐਟਮੋਸਟ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇੰਟਾਇਰ ਸ਼ੋ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਨੋ ਅਦਰ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਨਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦ ਫਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੁਇਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, it takes long time to take a decision। A quick decision is a great advantage। ठीक है। Sometimes a very profitable venture is lost due to lack of quick decision। ਇਸ ਕਰਤਾ ਓਨਲੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਕੈਨ ਮੇਕ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਇਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਇਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਮੈਨੇਜਰ, ਫਿਰ ਉਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਰਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਇਲਟੀ ਐਂਡ ਕੋਪਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਅਰ ਮੇ ਬੀ ਅ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਫੋਰਸ ਆਫ ਦ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਮੈਂਬਰ ਆਫ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਇਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਉਂਦਾ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਚੁਰਲ ਲਵ ਐਂਡ ਇਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਚ ਅਦਰ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਮੂਥਲੀ ਅਤੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲਿਮਿਟਿਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਆਰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਓਨਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਮੇ ਬੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟੂ ਮੀਟ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਈਵਨ ਬਿਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਰ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਬਿਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸ, ਇਹ ਕੁਛ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਰੋਂਗ ਫੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੀ ਜਦ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਇੰਨਾ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ, ਸੇਲਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ, ਉੱਧਰ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦ ਕਰਤਾ ਇਜ਼ ਇੰਪਾਵਰਡ ਵਿਦ ਵਾਸਟ ਪਾਵਰ ਆਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਕਰੇਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਹੂਮ ਹੀ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਮੋਰ ਲਵ, ਦਿਸ ਗਿਵਸ ਬਰਥ ਟੂ ਸਸਪੀਸ਼ਨਸ ਅਮੰਗ ਦ ਮੈਂਬਰ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਟੂ ਦ ਜੁਆਇੰਟ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਲੋਜ਼ ਵਨ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਬਟ ਹਿਸ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਫਾਈਨਲ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੂ ਔਰ ਮੋਰ ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਤੇ ਲੋਸ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਜ਼ ਗਰੋਨ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਫ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹਿਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਕੈਨ ਫਰਦਰ ਹੀ ਕੈਨ ਫਰਦਰ ਇਨਵੋਲਵ ਅ ਪਾਰਟਨਰ, ਕਿ ਉਹ ਫਰਦਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਰ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸਕ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ 'ਤੇ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਟੂ ਔਰ ਮੋਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ
may form a partnership by making a written, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ written agreement ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ oral agreement that they will jointly ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ। ਓਕੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट शेयर करते हैं, लॉसेस शेयर करते हैं, सारा काम खुद करते हैं, तो दैट इज़ पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 विच बनया सी, ये तो ध्यान रखिया करो। ठीक है, नैक्सट है डेफिनेशन के थ्रू आपने की एनालाइज किया। एक ये टू तो ज़्यादा परसन होने चाहिए ने, कंट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब एक दूजे की संबंधी होनी चाहिए है, ऐ नहीं है डिसएग्री नहीं होना चाहिए, दोनों एग्री होने चाहिए ने। ठीक है, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो सर्विस कॉन्ट्रीब्यूट तो शेयर करेंगे, कैपिटल भी, कैपिटल मतलब पैसा बिजनेस लैके आएंगे, सर्विसेज शेयर करेंगे। एक तो ज़्यादा परसन बिजनेस को चलाएंगे। द बिजनेस इज कंडक्टेड, बिजनेस कंडक्ट होएगा, ऑल पार्टनर्स चलाएंगे, सारे पार्टनर्स फॉर्मली बाइंड हो चुके हैं, बिजनेस कैरीड आउट करेंगे प्रॉफिट के उत्ते कि प्रॉफिट सानू होवे। पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही होगी, अगर उन्होंने सपोज लॉस होंदा है तो पार्टनर के घर का जो खर्चा होंदा वो भी आप लै सकते हैं। ये वही आ गया ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी उन्होंने आप लै सकते हैं कि अपने बिजनेस में अगर कुछ भी लॉस होंदा है, कोई लोन है, आप प्राइवेट भी ले सकते हैं, तो दैट इज़ पार्टनरशिप। ठीक है, 2 परसन डिस्कशन बिजनेस इन एन ऑफिस, एक ऑफिस के 2 परसन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नैक्सट है करैक्टरिस्टिक्स, ये की होंगे सिर्फ दो परसन का मिनीमम रिक्वायर्ड ही है। ग्रुप ऑफ परसन भी हो सकते हैं बट एटलीस्ट 2 परसन तो होने ही चाहिए ने। पार्टनरशिप एक्ट हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी मैक्सीमम लिमिट, कोई भी मैक्सीमम लिमिट नहीं दसी भी किन्ने परसन इत्थे तक ही होने चाहिए ने, बट उन्होंने मिनीमम दस दी कि 2 तो होने ही चाहिए ने। ठीक है, बट कंपनीज एक्ट की है, उन्होंने प्रिस्क्राइब कर रखे कि 10 परसन होने चाहिए ने अगर अपना बैंकिंग बिजनेस है, अगर कोई आप बैंक चला रहे हैं, 20 परसन होने चाहिए ने अगर कोई आप अदर बिजनेस चला रहे हैं। अगर वो अपने बिजनेस के नंबर एक्सीड्स हो जाते हैं तो उन्होंने जॉइंट स्टॉक कंपनी के रजिस्टर करवाना पैंदा है, अदरवाइज वो इलीगल कंपनी होंदी है। ठीक है, कंट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, कंट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए अमंग द पार्टनर्स। अ पर्सन डज नॉट बिकम अ पार्टनर आउट ऑफ हिज स्टेटस एज हिज केस इन जॉइंट, मतलब आउट ऑफ स्टेटस तो पार्टनर नहीं होना चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल है। परसन एंटरिंग इन ए पार्टनरशिप मस्ट बी कंपीटेंट टू एंटर इन टू ए कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ऐ नहीं है कि यह कॉन्ट्रैक्ट ओरल हो या रिटन हो, ऐ नहीं है भी अपनी मर्जी के नाल आप हाँ जी भी मैं वो ताया जी लगदी हाँ, मैं वो सिस्टर लगदी हाँ, मैं पार्टनर एक्ट च आ गई, नहीं ये नहीं होना चाहिए। प्रॉपर एक बकायदा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए कि फर्दर अगर डिस्प्यूट्स आते हैं आप उसनों लेटर ऑन, अगर आप डिस्प्यूट्स मतलब लड़ाइयाँ, अगर फर्दर अपने कोई चीज़ें एवं कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं आप उन्होंने सॉल्व कर सकीए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, ये की होंगे एग्रीमेंट होंगे पार्टनर्स के कि वो अगे जाके अपने प्रॉफिट्स तो लॉसिस में शेयर करेंगे। अगर अपने कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, अपना चैरिटेबल ट्रस्ट के कोई प्रॉफिट नहीं होंदा, कोई भी लॉस नहीं होंदा, सिर्फ एक ये चीज़ होंदी है, अगर चैरिटेबल कैन नॉट भी, वो पार्टनरशिप नहीं होंदी। चैरिटेबल ट्रस्ट की आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ये की आप प्रॉफिट शेयर करांगे कि लॉस शेयर करांगे। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग इज ओनली अ प्राइमा फेसी टेस्ट ऑफ अ पार्टनरशिप बट नॉट ए कनक्लूसिव प्रूफ, मतलब की है एक टेस्ट है पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयरिंग, एक कनक्लूसिव प्रूफ नहीं है। द इंप्लॉयज़ ऑफ ए बिजनेस में ऑल्सो शेयर प्रॉफिट्स बट देयर आर नॉट पार्टनर्स, इंप्लॉयज़ भी बिजनेस का प्रॉफिट शेयर कर सकते जिमें स्टेक होल्डर्स वगैरह, बट वो बिजनेस का पार्टनर नहीं होंगे। म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है, एवरी पार्टनर उन्होंने एक एजेंट क्रिएट किया जाता है बिजनेस का, अनलैस अदरवाइज एग्रीड ऑल पार्टनर आर इंटाइटल टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, सारे पार्टनर्स का हक होंगे कि वह जिन्ने भी टास्क ने बिजनेस के मैनेजमेंट के उन्होंने बिजनेस के कर सकते हैं, पार्ट लै सकते हैं। एवरी पार्टनर कैन बाइंड ए एक्ट अंडरटेकन इन ए गुड फेथ ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ये नहीं होना चाहिए कोई धोखाधड़ी वाला काम नहीं होना चाहिए, गुड फेथ के अंडर होना चाहिए। हर पार्टनर की सारे पार्टनर की मैनेजमेंट के होना डिसीजन लेना इसेंशियल नहीं होंदा।
ठीक है। अगे रीड करांगे आपां कोई स्लीपिंग पार्टनर हुंदा है, कोई केड़ा पार्टनर हुंदा है, ठीक है। अगे रीड करांगे आपां अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ईच एंड एवरी पार्टनर इज़ लाइबल जॉइंटली, कोई बात नहीं बच्चा। रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, नहीं सॉरी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। एक ही एवरी पार्टनर लाइबिलिटी जॉइन सेवरल फॉर द ओब्लीगेशन ऑफ द, अगर अपने पार्टनर के एसेट्स बिजनेस के विच फुलफिल नहीं हो रहे, कि जिमें आपने कई बार लोन ले लें, आप पैसे उधार ते ले लें, अपने क्रेडिटर्स ले लें, आप क्रेडिटर्स ज़्यादा होंगे ने अपने, तो अपन की होंदा है अपने जिहड़े पर्सनल एसेट्स होंगे ने ना, घर का समान होंदा है, वो भी ये यूज़ होंदा है। प्राइवेट प्रॉपर्टी भी पार्टनर की यूजड होंदी है। क्रेडिटर जिहड़े अपने क्रेडिटर्स होंगे ने, वो क्लेम करनगे कि साडा पैसा दो। जे अपनी ये वाली लाइबिलिटी पार्टनर अपने बिजनेस चो अपन नहीं दे सकते, तो घर दे एसेट तो यूज़ होंगे, या की करता कई बार एक पार्टनर अगर नहीं कर पाता तो दूसरे पार्टनर तो हेल्प ले लेता है। रिस्ट्रिक्शंस और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ये कहते नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज इंटरस्ट इन द फर्म टू एन आउटसाइड विदाउट, ये नहीं होंदा कि अगर अपना इंटरस्ट अगर उन्हें सपोज इस पार्टनर तो जाना है तो अपना इंटरस्ट किसी होर नूं दे दे, ठीक है। वो विदाउट एनी सारे नाल कंसल्ट करना पेगा फिर ही वो कर सकता है। एनोनिमस कंसेंट, एनोनिमस मतलब बिना लड़ाई झगड़े तो, कोई भी धक्केबाजी नाल नहीं, सब दा आपस दा खुद दा होना चाहिए कि हाँ जी असीं ये वाले पार्टनर नूं इनवॉल्व करन लई तैयार हाँ। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ए पार्टनर बीइंग एन एजेंट ऑफ द फर्म कैन नॉट डेलीगेट हिज अथॉरिटी इंटायरली टू आउटसाइडर्स। ये होंदा है भी वो वाला पार्टनर ही सिर्फ फर्म दा बंदा है, एजेंट है, जिहड़ा वो अपनी अथॉरिटी वो अपनी मतलब डिसीजन लैन दी पावर एक आउटसाइडर नूं नहीं दे सकता। अटमोस्ट गुड फेथ की होंदा भी अटमोस्ट गुड फेथ के विच ट्रस्ट के विच होनी चाहिए। ईच पार्टनर ओनेस्टली तो फेयरली कंडक्ट करना चाहिए बिजनेस के विच, ठीक है। भी ये नहीं होना, सस्पीशन नहीं होना चाहिए, भी धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। ये पार्टनर्स है फेथ, उन्होंने फेथ होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन उन्होंने पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू 1932 के रजिस्ट्रेशन करानी कंपलसरी है। फिर उन्होंने अगर रजिस्टर हो जाते हैं तो उन्होंने एडवांटेजिस मिलते हैं रजिस्ट्रेशन के भी। टाइम पीरियड कई बार की होंदा भी अब पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यूस अप टू द टाइम ऑल द, जिन्ना पार्टनर डिजायर करते हैं उन्ना टाइम तक ये कंटिन्यू होती रहती है। जो एक पार्टनर की डैथ हो जाए तो या तो कंपनी डिजोल्व हो जाती है, बंद हो जाती है, या कि होंदा नवे जोड़े पार्टनर 2-3 रह गए उन्होंने नाल एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मैरिट्स एंड डीमैरिट्स आप कल की क्लास के करते हैं। थैंक यू।